Now hmm, assignment numpy assignment 11 panels. that is 9. इस 9 के लेक्चर हमने 10 लिए राइट वेरी 10. Hello, let me open it on GitHub. So we have in the last lecture we have seen in the last lecture we have seen merge. Okay, in the last lecture we have seen merge. So initially we will import these two libraries which are necessary. Okay, so merge में हमने क्या देखा? If we have a data frame 1 and data frame 2, how to merge those data frames? Okay, how to merge those data frames based on different uh, joints. Joints कौन से joints थे हमारे? ये joints थे, right? Inner joint, outer joint, right joint, left joint. Okay, inner joint, outer joint, right joint, left joint. Inner joint क्या करेगा? It will give you the common uh, common items from both the data frames. Okay, inner. Outer joint क्या देगा? It will give you entire like it will give you data from left, data from right, and also common data. Okay, right will give you common data. Okay, right will give you common data plus right side. मतलब ये df2 पूरा दे देगा और प्लस df1 के कॉमन एलिमेंट्स भी दे देगा. लेफ्ट जॉइन विल डू द सेम. df1 पूरा दे देगा एंड df2 के कॉमन कॉमन चीजें भी दे देगा. ठीक है, df2 के कॉमन चीजें भी दे देगा. So this is how the joints work. So let's say we have df1, उसमें column name ASCII number, ASCII num and character. df2 ASCII num and character. Exactly, both of the data frames have the same column name. df3 ASCII num is same but characters are different, and df4 entirely columns are different. Okay. Now when I try to merge df1 and df2, okay, you can either write like this or you can either write like this. df1 merge df3. Okay, both the syntax are right. Okay, both the syntax are right. Now if you say pandas dot merge df1 on df2, okay, df on 1 on, so you need to mention which column, किसके ऊपर आपको merge करना है. Okay, किसके ऊपर आपको merge करना है. So for inner this is not a right example, this is also not a right example, this is a right example. So for df1 merge कर दो df3 पे. कौन से कॉलम पे? ASCII नंबर पे. So you should have a column, you should have a column which should be common. Okay, you should have a column which should be common. Getting it? And आपको बताना होगा how. It can be inner, it can be outer, it can be left, it can be right. ठीक है. Inner क्या देगा? It will give you the common values between two data frames. So when you check df1 and df3, df1 and df3, so this is my df3. इसके अंदर 69 से लेकर 74 तक है and ये मेरा df1 है which is 69 and 70. ये two columns, ये two row, these two rows are common in df1 and df3. Okay, df1 and df3, 70, 69 and 70. See, 69 and 70 exactly common है. And we said merge these two data frames on what? On what? On ASCII number.
on ASCII number, and how inner meaning just it will return common things. And if you say outer meaning ये सारा ही चीज दे देगा, it will give you everything. Okay, it will give you everything. The second example we have seen is left. Okay, left में क्या करेगा, it will give you the common things. See, these are common things, but it will also give you everything from df1. So df1 से सारे ही rows इसमें दे दे. Right will do the same, it will give you the common things. See, these are the common things, but it will also give you all the things from df3. Okay, df3, right? So there will be a situations when you will get, let's say, data of sales data, and sales through like geographical data and all. Okay, different geographies are there. And for example, you have a data set of Mumbai. Okay, this is old Mumbai, and you have a data set of Navi Mumbai. Okay, you have a data set of Navi Mumbai. So if this is a sales data, okay, if this is a sales data, so buyers are here, are good buyers, meaning these buyers can buy things on a high ticket value. Okay, ये expensive product buy कर सकते हो. But in the new Mumbai, there are some section, वो भी higher price पर products buy करते हैं. So you will need to do the left join. ठीक है, you will need to do the left join, so that आपके पास जो data set बचेगा, that will be a buyers of buyers who can buy the stuff on higher value. So left join में क्या रहेगा? It will give you the common area plus left join. Okay, plus left join. Like scenarios like this, कुछ रहेंगे when you will get the data set. ठीक है, अलग अलग सिनारियोज रहेंगे, उस हिसाब से you need to choose which joint do I need, right or left or only intersection, right? Intersection meaning inner joint, और मुझे सारा ही डेटा चाहिए. Okay, you will get a two data set, और आपको लगेगा exactly सारा ही डेटा. Okay, so like this. Next we have seen assign क्या करेगा, it will just create a column. एक कॉलम को आप एक डेटा असाइन करते हो. You have a data, you have this data, and you also have a empty, you also need an empty data frame. ठीक, empty पकड़ लिया anything. uh, like if it is हरा वाला, like इसके अंदर already कुछ elements रहते तो भी it is fine. Okay, that then also it is fine. So uh, yeah, so you just need some value and you just need column. उस column को you will be assigning the values, and that assignment will be done on the data frame. Okay, we can see initially we had an empty data frame. This is empty data frame. यहाँ पर कुछ आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा ये वाला. And then we added a new column using this list. Okay, using this list and assign function. Then we also saw we can create a random columns. Okay, random columns using like let's say if I use np dot random integers from 1 to 10, I want integer, and integer should be 5. तो कुछ इस तरीके से मिल गया. I've just given a column name 1, and उसके अंदर ये list या array मैंने पास कर दिया. Okay, you can also create columns like this, df1 column 2, और उसके अंदर zeros मैंने डाल दी, right? तो मुझे zeros वाला column मिल गया, and so on. ठीक है, and so on. You can add column 3 like this directly, and we have this column 1, column 3, column 2 at there. Then we have learned this pop function. Pop function will do what? It will pop out the column. Okay, it will pop out the column. So you just need to mention the column name. तो ये कॉलम उड़ा देगा. So यहाँ पर क्या था, कॉलम 2 था. So when we said pop column 2, अभी कॉलम 2 है ही नहीं, हमारे पास कॉलम 1 and कॉलम 3 ही बचा है. So when you want to pop out the columns, you can do what? You can just mention the column name,
and pop the column out. Okay. Next we have seen values. Okay. Next we have seen values. So it converts data frame into matrix format. Meaning ये हमारे पास जो डेटा फ्रेम है कुछ कुछ लोगों को डेटा फ्रेम्स पे काम करना पसंद ही नहीं. They wants an array because they feel array has so many freedom that you can run different operations in it, and you know you can calculate statistics and means and lot of things. So what they will do, they will just convert your data frame into an array like this. So you just have to say np.array or whatever variable you want to keep. You just have to say df dot values, and your data frame will get converted into and numpy array. Okay, numpy array. So let's say 3 by 3 array or 2 by 2 by 4 array, anything. Okay. उसके बाद हमने देखा ड्रॉप डुप्लीकेट्स. ड्रॉप डुप्लीकेट्स क्या करेगा? if you have duplicate values, let's say I have a b c column. a के अंदर a 1 2 है, b के अंदर 100 200 100 400 है, एंड सी के अंदर 4455 है. ओके, 4455. So if I say df dot drop duplicate c, तो always focus on c. ठीक है, c पर फोकस करना. So what it will do, ये 4 and 4 कॉमन है, राइट, डुप्लीकेट है, it will delete this one. जो फर्स्ट रो है ना, ये वाला रो 1, it will delete. Then if we have like 5 and 5 कॉमन है या डुप्लीकेट है, तो ये 3 वाला जो रो है इसको ये डिलीट कर देगा. Okay, it will delete the third row. So you will get only 0 and 2, this 0 and 2. Okay, there is one more thing. If you say drop duplicate of A, for example, अब हमने A पर काम करना है, ठीक है, and you will say keep first meaning वन है और यहाँ पर भी कॉमन चीज है वन वन, ठीक है, लाइक डुप्लीकेट है. So when you say keep first, it will just keep this block. It will let go the other one. Okay, so you can see keep first. If you say keep last, it will keep the last. It will let go the keep. It will let go the first column, first rows. Okay, so similarly you can run on two columns also. You can run on, yes, two columns also. So two columns में क्या होगा? It will try to find duplicate values from both of this A and B. Okay, both of this A and B. Okay, इसमें भी first and last वाला concept work करेगा. Now there is one more thing is duplicated. One more function called as duplicated. So let's say we have a row, column A, column B, column C. Column A के अंदर 1 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, कॉमन मीनिंग डुप्लीकेट है. कॉलम बी के अंदर 100 200 100 सिर्फ 100 डुप्लीकेटेड है. कॉलम सी के अंदर 444 है. बट इफ यू सी फॉर एंटायर डेटा सेट 100 104 104 and 104, this these two rows are exactly identical. Okay, zero row and second row are exactly, sorry, identical. So when you say data frame dot duplicated, okay, when you say data frame dot duplicated, you will get true and false values. True values for what? For the rows which are duplicate. So our second row is entirely duplicated of zero. Okay, entirely duplicated of zero. Otherwise you'll get false, false, false. And if you just add a square braces and a data frame, you'll get that thing. And if you want to let go that row, you'll just use this not operator and you'll get that data frame deleted. Okay, या इसके ऊपर drop रो चलेगा नहीं चलेगा, I'm not sure, but चला के देख लो. ठीक है. So this is how we have seen data frame के last कुछ functions. ठीक है, data frame के last कुछ functions. देन सीरीज हमने पढ़ा. सीरीज बहुत शॉर्ट था क्योंकि सीरीज थोड़ा शॉर्ट ही है. इट विल यू जस्ट हैव दिस वन इंटरव्यू क्वेश्चन. आप बताओ, दे विल आस्क यू वेदर दे विल आस्क यू वेदर दी वेदर दी like
Panda's data frame, is it multidimensional? Panda series is it multidimensional? Which is multidimensional? So you will say, so Panda's data frame is on multidimensional or two-dimensional tables, but the Panda series is single dimensional. Okay, so you will give one example. Example में data frame तो आप दे दोगे because you have spent 9 to 10 days on data frames. But आपको सीरीज का भी एग्जाम्पल देने आना चाहिए. ओके, सीरीज का भी एग्जाम्पल देते आना चाहिए. So how will you give the example? You will say series 1 equals to pandas dot series में s कैपिटल है, डेटा फ्रेम में भी d and f कैपिटल है guys, ठीक है. So series में s capital and you will just pass any data here and you will get a series यहाँ पर. Okay, you will get a series here. Then you can also say display. You can change the name of the column like this and the column name will get changed. And इतनी ही एक दो ही चीज इसके अंदर आप कर सकते हो. आप इसके अंदर वो वैल्यूज असाइन कर सकते हो, जैसे वैल्यू ऐड कर दो एट रो 5, एट रो कॉलम 2, like this and so on. ठीक है. So this was all about series and data frame. So if you want to practice pandas completely, you know these are all notes. ये कुछ data sets है मैंने already आपको study के लिए दिए हैं. And also there is a playlist that we have. This playlist which is this one pandas. तो इसको go through कर लो completely. ठीक है, completely go through कर लो. Cool. So any questions, any doubts, any questions, any doubts? So that, if yes, so batao, if it is clear everything, so we can move to the interesting part, that is machine learning. Clear, cool, clear, clear. Okay. So let's move on to machine clear. Let's move on to machine learning. Yeah. Let me stop my screen sharing. Let me start my another before that. You need to okay. All right. तो इसको मैं कैसे चेंज कर दूँ फुल स्क्रीन? तो ठीक है, change layout to spotlight and hide this one, minimize this one. So you can see my notepad. Okay, you can see my, like, if you can't, just let me know guys. You cannot, just let me know. इसको भी मैं क्या कर देता हूँ फुल स्क्रीन. ठीक है. So let's start with today's topic, that is that is introduction to uh, 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 that is introduction to introduction introduction to machine learning. Okay, learning, let's say algo. ठीक है. I will explain you all the algorithms which are there which are there in the machine learning. ठीक है, which are there in the machine learning. Okay, all the algorithms. So before that we must understand what are AI. Okay, what is AI? Okay, what is machine learning? Right, what is machine learning? What is like versus deep learning and versus data science.
तो विच यू आर गोइंग टू लर्न। तो ये चारों की चारों चीजें आप पढ़ोगे। तो बीइंग एन एआई इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर, अगर आपको एआई इंजीनियर में जाना, तो ये क्लास कर कर, दिस क्लास, व्हेन यू डू दिस क्लास, यू विल बी, you can apply for AI engineers, AI engineer please, okay, you can apply for data science, data scientist, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट, यू कैन अप्लाई फॉर, तो अभी तो आप पाइथन डेवलपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, पाइथन डेवलपर, डेवलपर, ठीक है। तो बिकॉज आपका पूरा पाइथन हो चुका है एंड टू एंड, ठीक है, इसमें बस डीबगिंग हमारा बाकी है, ठीक है, डीबगिंग, बट वंस दैट इज डन तो हो जाएगा, ठीक है। So you can apply for AI engineer, data scientist. You can also apply for data analyst. ठीक है, analyst can also apply for data analyst. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा hierarchical बताऊँ, so you can apply for, we talked about data analyst, right? Analyst. You can apply for data engineer also. Data in the engineer. डे डे ऑप्स भी रहेगा, ठीक है, डे डे डेव ऑप्स, डे ऑप्स इंजीनियर्स भी रहते हैं, ठीक है, डे ऑप्स इंजीनियर भी रहता है। इसके अंदर बिग डेटा भी रहता है, बिग डेटा, देन यू हैव पावर बीआई, है ना, बीआई इंजीनियर्स भी रहते हैं, देन यू हैव बिग डेटा हो गया, और so all these are which supports data scientist, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, तो ये सब डेटा साइंटिस्ट को हेल्प ही करते रहते हैं, या फिर डेटा साइंटिस्ट इज अ गाय, और एआई इंजीनियर एक इसके अंदर रहेगा, ठीक है, एआई इंजीनियर, एआई इंजीनियर। तो एआई इंजीनियर का थोड़ा सा अलग स्कोप भी रह सकता है, बट इन सब का भी अलग अलग स्कोप रह सकता है। बट बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपको पावर बीआई भी आना चाहिए, आपको डेटा एनालिसिस करना भी आना चाहिए, यू शुड ऑल्सो नो द एआई, यू शुड ऑल्सो नो द डेटा, एग्जैक्टली, शुड ऑल्सो नो द हाउ डेऑप्स वर्क्स। डेऑप्स में आपको क्या आना चाहिए, डॉकर आना चाहिए, कुबरनेटिक्स आना चाहिए, ठीक है, एंड गिटहब आना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स, एडब्ल्यूएस आना चाहिए। बिग डेटा, आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा, बट बिग डेटा हैज इट्स ओन merits and demerits. But being a data scientist or being a AI engineer, you should know all these things. तो ये सब आपको ही सर्व करेंगे। अगर आप बस डेटा एनालिस्ट है तो आपको बस एनालिसिस के बारे में पूछा जाएगा, लाइक ईडीए पार्ट आपको आना चाहिए, ठीक है, ईडीए पार्ट आपको आना चाहिए, या फिर whatever data you get, you should be able to know how to post that data on a BI server, like Power BI server and all those things. Okay, so इसमें visualization भी आ गया, visualization, ठीक है, you should also know visualization, data को visualize कैसे। so the matter of fact is, आज के बाद से हम जो भी सीखेंगे ये सारा ही इसके अंदर कवर होगा, everything will get covered. So first we will start with machine learning, then we will go to deep learning, then we will go to AI. Okay. So let me just give you the difference between AI, okay, machine learning, deep learning, and data science. Okay. Let's say whenever you will be working as a data scientist or AI engineer, you will be creating an AI application. Okay. You will always create an AI application. So considering that this is your AI, ये आपका AI है। आप किस जिस पे भी कभी भी किसी पे भी काम करते हो, तो दैट विल यू विल बी वर्किंग ऑन AI ऑलवेज, ठीक है, यू विल बी वर्किंग ऑन AI। तो AI क्या होता है, एआई क्या होता है कि ये एक ऑटोनॉमस सर्विस होती है, ठीक है, एआई में यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर मैं नीचे लिख देता हूँ, एआई इज एन
ऑटोनॉमस सर्विस। ठीक है, ऑटोनॉमस सर्विस। सबसे फर्स्ट एग्जांपल क्या रहेगा ऑटोनॉमस सर्विस का? इट विल बी टेस्ला। टेस्ला सबको पता है, ठीक है, टेस्ला सबको पता है। व्हाट इज टेस्ला? टेस्ला इज सेल्फ ड्राइविंग कार, राइट? सेल्फ ड्राइविंग कार, ओके, सेल्फ ड्राइविंग कार। तो ये ऑटोमेटिकली रन होती है, राइट? इट इज ऑटोमेटिक, इट रन्स ऑटोमेटिकली। सेकेंड एग्जांपल क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल सबने यूट्यूब देखा रहेगा, राइट? यूट्यूब देख रहा है, even the people who are looking now on the YouTube. So this class is related to us what? AI and data science, right? AI and data. इस क्लास के रिकमेंडेशंस आप देखो गाइस, इसके नीचे एक रिकमेंडेशन रहेगा। These recommendations are also related to same. Okay. Someone wants to ask some question? Yes, Suhas, if you have any question? Okay. Screen not visible. अरे यार क्या बात कर रहे हो? Mm, mm, mm. Is it same for others also? Okay, done. Okay, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Cool. Coming back. So you must be going on YouTube. ठीक है, YouTube के अंदर जो भी अभी हम आप अभी देख रहे हैं, हम AI एंड डेटा साइंस के ऊपर क्लास, राइट? तो इसके नीचे, इसी वीडियो के नीचे आपको रिकमेंडेशन भी सिमिलर से आएंगे। So that is called as recommendation engine. ठीक है, रिकमेंडेशन इंजन। तो रिकमेंडेशन इंजन और कहाँ कहाँ पर यूज होगा? इट विल यूज फॉर ऑन नेटफ्लिक्स, ठीक है, नेटफ्लिक्स कह लो, जियो कह लो, या फिर कोई भी लाइक सोनी, हर एक के नीचे, हर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, या हर एक इंस्टाग्राम पे कह लो, है ना, इंस्टाग्राम। So all at all these places you will see this recommendation engine, ठीक है। So this is a part of AI, ठीक है, this is a part of AI। इंस्टाग्राम में और क्या रिकमेंड होता है? अगर if you search anything, for example face wash, okay, face wash, so you will get all the recommendations। तो SEO का पार्ट हो गया, या इसके अंदर आप जब भी टाइप करते हो तो यू टाइप इन द नेचुरल लैंग्वेज, ओके। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी हम सीखेंगे बाय द वे। तो ये सारी चीजें एआई के अंदर आई, okay, self driving car हो गया, yeah, all these things। So whenever you will be working as a data scientist or AI, you will be creating an AI applications, ठीक है, you will be creating an AI application। So this is a universe जहाँ पर you will be creating a AI application always। So in this universe there will be this another part that is called as machine learning, ठीक है। कलर चेंज करते रेड में। so this is your machine learning, okay। in this your AI universe in this your AI universe you have this another part called as machine learning, okay, another part called as machine learning। तो मशीन लर्निंग क्या रहेगा आपका? मशीन लर्निंग क्या रहेगा? so it will be, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, these are notes, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या रहेगा? मशीन लर्निंग रहेगा, आ, तो इसके अंदर आप सीखोगे, इसके अंदर आप सीखोगे, अरे अरे ये जाके, ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर आप सीखोगे, क्या सीखोगे? यू विल बी मोस्टली लर्निंग दी स्टैटिस्टिकल टूल्स, ओके, स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक ये हो गया वन चीज। सेकेंड आप सीखोगे एनालिसिस ऑफ डेटा, ठीक है। डेटा को एनालिसिस कैसे करते हैं, डेटा के अंदर उसको स्टैटिस्टिकली उसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। यू विल बी आल्सो लर्निंग फोरकास्टिंग, ठीक है, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मीनिंग ऑलमोस्ट फ्यूचर प्रिडिक्शन, ठीक है, या फोरकास्टिंग कह लो या प्रिडिक्शन कह लो। प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन का स्पेलिंग क्या होता है गाइस? प्रेडिक्शन, ठीक है, प्रेडिक्शन। तो फोरकास्टिंग प्रेडिक्शन कहाँ पर चलता है? फॉर एग्जांपल आप एक सप्लाई चेन कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है।
तो उनका एक सेल्स का एक पैटर्न होता है, ठीक है, सेल्स का एक पैटर्न होता है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। तो ऑन जनवरी एंड टिल दिसंबर, तो ये सेल्स कभी डाउन रहता है, कभी अप जाता है, कभी डाउन रहता है, कभी अप जाता है, कभी बहुत ज्यादा, जैसे दिसंबर में बहुत ज्यादा सेल्स होता है। ओके, सो व्हेन यू विल बी लाइक फोरकास्टिंग फॉर लाइक, ये अभी 2024 है, तो आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल तैयार कर लिया इस डेटा पे। सो व्हेन यू विल बी प्रिडिक्टिंग फॉर 2025 कि जनवरी में कितना सेल्स रहेगा, फरवरी में कितना रहेगा, मिड जुलाई में कितना रहेगा, लाइक सितंबर में बहुत कम रहेगा फॉर एग्जांपल, दिसंबर में बहुत ज्यादा रहेगा। So based on this sales trend, आपका टीम क्या करेगा? They will keep the inventory based on this prediction or based on this forecasting. Your team will hold the inventories in their warehouses or shops में कह लो, ठीक है? This is how the prediction or predicting or forecasting work. Okay, okay. तो ये हो गया आपका मशीन लर्निंग, ठीक है। एआई के अंदर एक छोटा सा पार्ट हो गया मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग। फिर डीप लर्निंग कहाँ पर आ रहा है सर? So deep learning is one more smaller part of this of this machine learning, which is called as deep learning. Okay, which is called as deep learning. So deep learning usually क्या करता है सर, मेरे को बताओ, वो I need to know first. So don't worry, deep learning भी हम बहुत deep में सीखने वाले हैं. So deep learning is like there were few scientists, they want to know how human brain work. ओके, ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन पे उन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी करी, उसके अंदर उन्हें पता चला, दे गॉट टू नो देयर आर न्यूरॉन्स विच हैज सम नेटवर्क्स, जैसे ये न्यूरॉन हो गया, ये न्यूरॉन हो गया, ये न्यूरॉन हो गया, ये न्यूरॉन। तो इनके अंदर एक न्यूरॉन लिंकेज होता है। ओके, न्यूरॉन लिंकेज होता है एंड दीज न्यूरॉन्स शेयर इंफॉर्मेशन अक्रॉस। ओके, ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर। So this has some patterns. The human neurons has some patterns. So deep learning is the study of mimicking, बोल दो, mimicking human neurons. ऐसे like this is not a official definition, but understand deep learning में हम जो ह्यूमन न्यूरॉन्स है उसके अंदर के जो पैटर्न्स है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं। सो उसके अंदर क्या होता है कि एक ये सिंगल लेयर हो गया, ठीक है, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स एक मल्टी लेवल हो जाएगा, मल्टी लेवल, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे आरएनएन, रिकर्सिव लाइक न्यूरल नेटवर्क, और सीएनएन हो गया, एएनएन हो गया, राइट, 4 5 एएनएन हो गया। So neural networks, convolutional neural networks, and so on. Okay, so you will be learning all these things in the deep learning. Okay, deep learning. Coming back to the universe. अरे कहाँ पर गया भाई ये data? So AI is a universe, इसके अंदर machine learning है, deep learning है। But sir, मैं आप तो बोल रहे हो कि क्या बोल रहे हो, ये डेटा साइंस, तो हम तो डेटा साइंटिस्ट बनने वाले हैं, डेटा साइंस का। So data science is someone, ऐसे नहीं, ये यूज करते हैं, data scientist is someone who should know everything. इस सब का थोड़ा थोड़ा पार्ट डेटा साइंटिस्ट को आना चाहिए, ओके, इस सब का थोड़ा थोड़ा पार्ट डेटा साइंटिस्ट को आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नहीं, मीनिंग सब चीज आनी चाहिए, बट यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स इन समवॉट थरो, ठीक है, थरो। You should be, you will be, for example, you will be, you should be like, आपको मशीन लर्निंग बहुत अच्छे से आता है, विच इज फाइन, विच इज गुड, ठीक है, मशीन लर्निंग बहुत अच्छे से आता है, या आपको डीप लर्निंग बहुत अच्छे से आता है, या एआई, कोई एक दो चीज आपको बहुत अच्छे से आती है, बट इट इज रिक्वायर्ड दैट, इट इज रिक्वायर्ड दैट you should know all these things,
Okay, it is required that you should know all these things. Okay, all right. So mm, let's come back to our main topic, which is machine learning. Okay, I hope this piece of knowledge is clear. Okay, इसके अंदर ऐसे नहीं समझ में. Okay, cool. Pradeep. So let's come to our now main topic, which is machine learning. Okay, machine learning. Okay, and डीप लर्निंग भी बोल सकते हो. ठीक है, डीप लर्निंग, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से डीप लर्निंग के भी algorithms में बता देता हूँ, बट मेनली मशीन लर्निंग. तो मशीन लर्निंग के अंदर देर आर टू वेज ऑफ मशीन लर्निंग. सबसे फर्स्ट है सबसे फर्स्ट है सुपरवाइज्ड. ओके, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. ठीक है, एंड सेकंड क्या है? द सेकंड इज अनसुपरवाइज्ड. अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. देर आर टू मशीन लर्निंग्स. एक है सुपरवाइज्ड, एक है अनसुपरवाइज्ड. ठीक है, तो इनको किस तरीके से देखा जाता है वो देखते हैं. ठीक है, हमें पता चल गया मशीन लर्निंग हम सीख रहे हैं. ठीक है, मशीन लर्निंग हम सीख रहे हैं. मशीन लर्निंग के अंदर टू टाइप्स है. ठीक है, देर आर टू टाइप्स इन द मशीन लर्निंग. फर्स्ट है सुपरवाइज लर्निंग, एक है अनसुपरवाइज. ठीक है, ये सुपरवाइज क्या है सर? सबसे पहले तो मेरे को ये सुपरवाइज बताओ. तो ए इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. ठीक है, so whenever you talk about machine learning or supervised or unsupervised machine learning, you should always refer one thing, that is data set. ठीक है, डेटा सेट. डेटा सेट हमने देखा पांडास में, राइट? डेटा सेट हमने देखा, इट इज लाइक अ टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा. राइट, टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा होता है. ठीक है, सो यू विल ऑलवेज लुक फॉर डेटा सेट. डेटा सेट में हमें क्या देखना है? फर्स्ट थिंग यू विल लुक फॉर इज इंडिपेंडेंट. इन इंडिपेंडेंट का स्पेलिंग अभी आप समझ लो, मैं यहाँ पर बस आईडी लिख रहा हूँ. इंडिपेंडेंट फीचर्स. ठीक है, इंडिपेंडेंट फीचर्स. और एक होता है डिपेंडेंट फीचर्स. डिपेंडेंट फीचर्स. सर प्लीज एक्सप्लेन ये इंडिपेंडेंट फीचर एंड डिपेंडेंट फीचर को थोड़ा सा डीप में समझाओ. मुझे समझ में ही नहीं आया ये आपने क्या बोला. इंडिपेंडेंट फीचर एंड डिपेंडेंट फीचर क्या होता है? तो लेट्स से आपके पास एक डेटा सेट है. ठीक है, लेट्स से यू हैव अ डेटा सेट. अरे ये गया क्यों नहीं? वन सेकेंड. ठीक है, लेट्स से यू हैव अ फीचर्स. फॉर एग्जांपल आपको किसी की स्किन टाइप. स्किन टाइप. ठीक है, स्किन टाइप दे दिया. और आपको दे दिया आइज कलर. ठीक है, दिस इज योर डेटा सेट. ठीक है, स्किन टाइप दे दिया, आइज कलर दे दिया, एंड you have also given the weight. Okay, you have also given the weight. So based on these three parameters, you need to predict the weight of the person. Sorry, age of the person. You need to predict the age of the person. ठीक है, ये तीन चीजें देखकर, लाइक स्किन टाइप है रिंकल. ठीक है, टाइट हो सकती है, क्या कह सकते हैं, डैमेज हो सकती है. ठीक है, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन टाइप. आई कलर हो सकता है ब्लू, ब्लू, ब्राउन, या फिर ब्लैक. ठीक है, ब्लैक, प्यूपिल कलर. वेट हो सकता है 63, सॉरी, हाँ 63 पकड़ लो, 84, 23. ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस यू विल बी प्रिडिक्टिंग द एज. तो इनका एज हो सकता है 74, लाइक एक डेटा सेट है. इनका एज हो सकता है 41, इनका एज हो सकता है 18. ठीक है, इनका एज हो सकता है 18.
So you will have these data sets. Okay, you will have these data sets, and these data sets will be these like कुछ इस तरीके से आपको एक डेटा फ्रेम मिलेगा. ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास एक डेटा फ्रेम रहेगा. ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, वी विल बी ऑलवेज बेस्ड ऑन दिस. फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, मशीन लर्निंग को ये सारा डेटा दोगे, एक पैटर्न देखोगे इस डेटा के अंदर, एंड दैट पैटर्न यू विल टीच योर मशीन लर्निंग मॉडल. यू विल टीच योर मशीन लर्निंग मॉडल. जब अगर फ्यूचर में किसी ने, दिस इज फ्यूचर डेटा, ठीक है, अगर फ्यूचर में किसी ने बोल दिया कि स्किन टाइप इज रिंकल्ड, ठीक है, स्क्रीन टाइप इज रिंकल्ड एंड आई आई कलर इज ब्राउन. वेट सेकंड, किसी ने कॉल कर दिया था. ठीक है, आपको आपने एक मॉडल बना लिया, यू हैव मेड द मशीन लर्निंग मॉडल, लाइक एक एप्लीकेशन है, और उसका एक यूआर है, नो योर एज नाम से, नो योर एज डॉट कॉम. नो मीनिंग KNOW, पता कर लो अपनी एज कितनी है. तो पीपल विल गो, दे विल टाइप देयर नेम, दे विल टाइप देयर स्किन टाइप इज लेट्स से रिंकल. ठीक है, कोई बोलेगा नहीं रिंकल है, बट लेट्स से अब वो बोलेगा माई आई कलर आर इज ब्लैक. ठीक है, माई आई कलर इज ब्लैक, माई वेट इज 44, सॉरी, माई वेट इज 44. So based on your machine learning models understanding, if your machine learning models predict their right age, for example आपने machine learning में learning के मॉडल ने 44 एज प्रेडिक्ट कर दिया उस बंदे का, तो तो योर मशीन एंड उसका एज 40 या 42 के आसपास ही है, so it means your machine learning model is good. Okay, your machine learning model is good. So this is how, this is how you train your machine learning model on the data set, and base after जो आपका machine learning model train हो गया, उसी मॉडल को यूज कर आप प्रिडिक्शंस करते हो. ठीक है, so to predict this age, जो जो फीचर्स आपको लगे हैं, जैसे स्किन टाइप लगा है, आई कलर लगा है, वेट लगा है, these are called as independent features. Okay, these are called as independent features because ये फीचर्स किसी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट. these features are not dependent on anyone. Okay, but this feature age is dependent on all these features. Okay, this age feature is dependent on all the rest of the features. That is why this is called as dependent feature. ओके, डिपेंडेंट फीचर. तो आपको ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा फॉर श्योर, लिख लो. ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट फीचर, व्हाट इज डिपेंडेंट फीचर. तो आपको पूछेंगे कि आपका प्रोजेक्ट के बारे में बताइए. ठीक है, योर इंटरव्यूअर्स विल से टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट ऑन मशीन लर्निंग. ठीक है, तो यू विल से यस आई हैव वर्कड ऑन दिस फाइनेंशियल मॉडल, जिसमें we get to know the sales trend or like finance trend or all these things. So they will definitely ask whether it was supervised learning or unsupervised learning. So if you say it is a supervised learning, okay, if you say it is a supervised learning, they will directly come to this question. What question? Which were your independent features and which were your dependent features? Okay, so you should know that my independent features were these 1, 2, 3, and my dependent features were this one, 1, 2, whatever you keep. Okay, 1, 2, whatever you keep. So, okay, this is what the uh, 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 supervised learning looks like, guys. Okay, this is what supervised learning looks like. Okay, are we getting this? सुपरवाइज्ड के अंदर और भी चीजें हैं वैसे, बट इतना सबको किसको समझ में आया है? एनीवन, एनी क्वेश्चंस? अगर इसके अंदर कुछ भी क्वेश्चन है तो लेट मी नो. कुछ रिपीट करना है तो वी कैन रिपीट. ठीक है, कुछ रिपीट करना है तो वी कैन रिपीट.
तो हमने देख लिया, हमने समझ लिया सुपरवाइज लर्निंग के अंदर कुछ इंडिपेंडेंट फीचर है होते हैं, कुछ डिपेंडेंट फीचर होते हैं। ठीक है, इसके बाद सुपरवाइज्ड के अंदर और दो टाइप आते हैं। ठीक है, सुदीप से दैट हैज बोथ इनपुट एंड आउटपुट लेवल। यस, लेबल्स, इनको लेबल्स भी कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड एज लेबल्स या फीचर्स। ओके, these are called as input labels। ठीक है, ये इनपुट हो गया आपके तीन। दिस इज कॉल्ड एज योर आउटपुट। ठीक है, एज इज योर आउटपुट। ठीक है, एज इज योर आउटपुट। सो नाउ व्हेन वी लर्न सुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड के अंदर और दो टाइप होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। और अनसुपरवाइज्ड के अंदर मोस्टली होता है क्लस्टरिंग। ठीक है, क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग। ठीक है, सुपरवाइज्ड के अंदर रहेगा क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। अनसुपरवाइज्ड के अंदर रहेगा क्लस्टरिंग। ठीक है, so let's understand, let's say I am saying supervised machine learning, उसके अंदर हो गया क्लासिफिकेशन एंड अलग रहेगा रिग्रेशन। ठीक है, सर क्लासिफिकेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ओके, नो वरीज, हम इसको फिर से अच्छे से समझते हैं। So my first problem is classification. Classification. Okay. Classification मुझे सबसे पहले सीखना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन मुझे सबसे पहले सीखना है। So you will have, let's say, another data set. ठीक है, another data set. For example, you need to predict your output or dependent variables are dependent dependent variables are फॉर एग्जाम्पल आपको क्या प्रिडिक्ट करना है कि वेदर इट विल रेन, वेदर इट विल रेन और नॉट। ठीक है, आपको देखना है कि रेन हो, बिकॉज दिस इज रेनी सीजन, राइट, बिकॉज दिस इज रेनी सीजन। So you need to predict whether it will rain or not. So for that matter, you have 2 to 3 independent features. Let's say temperature। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, और यू कैन से विंड फ्लो पकड़ लो, विंड फ्लो। So you have this data set. So temperature is 23 degrees Celsius, 24, 28 and so on. ठीक है, ह्यूमिडिटी हो गया एक्स वाई जेड, विंड फ्लो हो गया मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, वट एवर यू कीप। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन दिस यू हैव दिस डेटा सेट। ठीक है, आपके पास ये डेटा सेट है। सो what your model will predict, whether it will rain or not। ठीक है, rain or not, yes or no, pass or fail, right, yes, yes और नो। ठीक है, पास या फेल या फिर वट एवर, लाइक जो भी पैरामीटर्स आप पकड़ लो जिसके अंदर व्हेन देर आर ओनली टू प्रिडिक्शंस। ओके, टू प्रिडिक्शंस, टू प्रिडिक्शन मीनिंग आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो कि दिस और दैट, दैट। ओके, दिस और दिस और नॉट। ओके, दिस और नॉट, वन और जीरो। ठीक है, वन और जीरो। So whenever you will be doing like this, whenever you will be classifying, इसी को क्लासिफिकेशन कहेंगे, राइट, जीरो और वन, इसी को आप क्लासीफाई कर रहे हो। ठीक है, कोई स्टूडेंट है या आपके पास स्टूडेंट का डेटा सेट है, based on his sleeping hour, based on his studying hours, based on his IQ, है ना, आपके पास पूरा उसका डेटा सेट है, based on all his independent features। ठीक है, ये आपके independent features हो गया। ठीक है, ये आपका dependent हो गया। Based on these independent feature, you will be classifying whether that student will pass or fail। ठीक है, यू आर क्लासिफाइंग है। तो दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। जो ऐसे कुछ टास्क रहेंगी उनको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन टास्क। ठीक है,
क्लासिफिकेशन टास्क। एंड सेकंड क्या रहेगा? सेकंड रहेगा रिग्रेशन। रिग्रेशन, तो रिग्रेशन के अंदर आपके पास पास फेल या इस तरीके से नहीं रहेगा। यू विल बी गेटिंग, यू विल बी प्रिडिक्टिंग कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल। सर मुझे कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं समझा है, मुझे एक एग्जांपल देके समझाओ। कुछ इस तरीके से ही, ओके, कुछ इस तरह। so there is a very famous केस स्टडी जो आपको कहीं पे इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, दैट इज हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। ठीक है, क्या है? हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। ठीक है, क्या है? हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। मीनिंग आपको एक हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करनी होती है। तो फॉर एग्जांपल आपको रहेगा, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिखते हैं, जैसे नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स, बिल्डअप एरिया, है ना, बिल्ड अप एरिया, एरिया हो गया, कारपेट एरिया हो गया, कारपेट एरिया हो गया। एंड इसके अंदर बहुत सारे और भी रह सकते हैं, जैसे इधर उधर को हाउस नंबर, कॉर्नर, इज इट कॉर्नर और नॉट, साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, जिप कोड हो गया, यस यू आर राइट। एंड जिप कोड या पोस्टल कोड, व्हाई दैट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज जियोग्राफिकली प्राइस चेंज होते हैं, राइट? मुंबई में, थाने के अंदर, या साउथ बॉम्बे में जो प्राइजेस रहेंगे वो प्राइजेस आउटस्कर्ट्स में, जैसे आउटस्कर्ट क्या है यार, मुंबई का आउटस्कर्ट्स ही नहीं है कोई, नासिक में पकड़ लो ना, नासिक में वो प्राइजेस नहीं रहेंगे, द प्राइजेस विल बी डिफरेंट, राइट? So based on the zip code, yeah, carpet area, built-up area, you will be predicting the house price. Okay, you will be predicting the house price. ठीक है, हाउस प्राइस कुछ इस तरीके से रहेगी, 0 1, नहीं, राइट, 0 1 ऐसी नहीं रहेगी। हाउस प्राइस कैसे रहेगी? इट विल बी लाइक 1 CR, 1.2 CR, 5 CR, right? Like this. So these are continuous variables. ठीक है, these are continuous variables. ओके, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स मीनिंग आपके पास न्यूमेरिकल डेटा रहेगा, ऐसे पकड़ लो। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा रहेगा। so you will be like predicting the things like, अरे यार मत करो कॉल भाई, कॉल कट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल we will be predicting the prices like this. You have this x-axis, you have this y-axis। ठीक है, you have this x-axis, y-axis। तो आप ऐसे, आपके पास प्राइजेस रहेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ प्राइजेस, मतलब ये रहेगा 0 CR, 1 CR, 2 CR, 3 CR, 4 CR, 5 CR। ओके, और यहाँ पर और कुछ एक्स पे आपका और कुछ पैरामीटर्स रहेंगे, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। सो यू विल बी प्लॉटिंग द वेरिएबल्स यहाँ पर। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ऑल दिस। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी सारा ही डेटा सेट के अंदर की वैल्यूज आप कुछ इस तरीके से प्लॉट करोगे। इसको स्कैटर प्लॉट भी कहा जाता है। ठीक है, एंड देन यू विल बी कैलकुलेटिंग, और यू विल बी डूइंग कैलकुलेटिंग द स्लोप। लेट्स से ये आपका स्लोप हो गया। ठीक है, दिस इज योर, इसको ना कुछ और कलर में करते तो सही दिखेगा, रेड में करते तो। ठीक है, so you will be calculating the slope। ठीक है, you will be calculating the slope। so this is also called as linear, मतलब ये आप ना स्लोप कैलकुलेट करोगे, इसका मतलब आप एक रिग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसी को लीनियर रिग्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, रिग्रेशन। so this we are going to see। ठीक है, this we are going to see। so we will be plotting the house prices, या फिर जो भी कंटिन्यूस वेरिएबल रहेगा, कुछ इस तरीके से हम प्लॉट करेंगे, और इसी को हम लीनियर रिग्रेशन और रिग्रेशन एल्गोरिदम कहेंगे। रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन समझ में आ गया सबको? ठीक है, रिग्रेशन में क्या रहेगा? यू विल बी डीलिंग विद कंटिन्यूस वेरिएबल्स। ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएबल्स कुछ इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक है,
इसको अभी के लिए तो लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, बट देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल्स, रिग्रेशन algorithms that we will discuss. कंटिन्यूस वेरिएबल में हम बस यस नो प्रिडिक्ट करते हैं, फेल पास या 0 1 हम प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, तो वी हैव अंडरस्टूड सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के दो चीजें। एक चीज हमने सीख लिया क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक चीज हमने सीख ली रिग्रेशन क्या होता है। ओके, रिग्रेशन क्या होता है। So now can can you tell me, हमने तो बात तो कर ली ये क्या होता है, बट algorithms कौन से हैं इसके अंदर, उसकी तो हमने बात ही नहीं की। ठीक है, तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड विच आर algorithms, जैसे मशीन लर्निंग algorithms। तो दीज algorithms, हम ये algorithm सीखने वाले हैं कब, कमिंग लेक्चर्स में। ठीक है, so we will start with फॉर एग्जाम्पल, मतलब रैंडमली सीखेंगे, बट फॉर एग्जाम्पल हमने रिग्रेशन से स्टार्ट कर लिया, रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन के अंदर कौन से ऑलगोरिदम्स आ रहे हैं, रिग्रेशन के अंदर आ रहे हैं, फर्स्ट ऑलगोरिदम रहेगा आपका लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन इज योर फर्स्ट ऑलगोरिदम। सेकेंड algorithm है लासो एंड रिच, रिच रिच। ठीक है, लासो एंड रिच, इसी को L1 एंड L2 भी कहा जाता है। ठीक है, L1 एंड L2। देन योर थर्ड algorithm जो हम सीखने वाले हैं, दैट विल बी योर डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री, और ये रहेगा रिग्रेशन में। ठीक है, इसका एक क्लासिफिकेशन भी है। फिर आपका रहेगा रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, ये भी रिग्रेशन में है, बट इसी का सिमिलर एक क्लासिफिकेशन भी रहेगा। उसके बाद एक्सजीबूस्ट, एग्जीबूस्ट ये बूस्टिंग एल्गोरिदम है। उसके बाद अगर मैं कह दूँ डीप लर्निंग में ANN हो गया। ठीक है, और RNN हो गया। ठीक है, रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया आपके रिग्रेशन वाले एल्गोरिदम्स। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या सीखेंगे, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में वी विल बी लर्निंग, क्लासिफिकेशन में वी विल बी लर्निंग, सबसे पहला रहेगा हमारा लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन है, लॉजिस्टिक एल्गोरिदम कह लो। ठीक है, सेकेंड हमारा ये क्लासिफिकेशन, ये सेम। ठीक है, डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री। ठीक है, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, और ये सारी चीजें लाइक एक्जीबूस्ट भी रहेगा आई गेस के अंदर, लेट मी चेक बाद में। ठीक है, 2 3 4। देन आपका यहाँ पर भी रहेगा ANN एंड RNN। ठीक है, these all these all are these all are you know classification and regression algorithms. Okay, classification and regression algorithms. तो हमने अभी क्या क्या देखा, हमने देखा सुपरवाइज्ड का सारी चीजें, सुपरवाइज में क्लासिफिकेशन देख लिया, रिग्रेशन देख लिया, उसके अंदर एग्जांपल्स देख लिया हमने। ओके, एग्जांपल्स देख लिए, और उसके अंदर हमने देख लिए कौन से algorithm यूज होते हैं, those algorithms also we have seen। बट सर हमने इनका तो कुछ देखा ही नहीं, अनसुपरवाइज का। चलो अनसुपरवाइज का आई थिंक इट इज अबाउट टाइम, बट अनसुपरवाइज का एक दो एग्जांपल्स लेकर लेट्स क्लोज। ठीक है, लेट्स क्लोज। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं विथ अनसुपरवाइज्ड। कैसे अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हमने एक ही चीज पढ़ना है, दैट इज क्लस्टरिंग। ओके, दैट इज क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या रहेगा, ओके, व्हाट विल बी द क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग चीज रहेगी क्या। फॉर एग्जाम्पल क्लस्टर कहाँ पे काम आता है, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आपके पास है, आपके पास है
सेल्स डेटा। ओके, सेल्स डेटा, ठीक है। इसके अंदर या आपके पास है मेट्रो, मेट्रो सिटीज, ठीक है, मेट्रो सिटीज, टीयर टू, टीयर थ्री सिटीज, टू एंड थ्री सिटीज। उसके बाद रहेगा विलेजेस का, फॉर एग्जांपल, ठीक है, विलेजेस। हर एक का हर एक का स्पेंडिंग कैपेसिटी अलग है, राइट, हर एक का स्पेंडिंग कैपेसिटी अलग। So based on that, you need to create a clusters, ठीक है। Based on that, you need to create a clusters, ठीक है। क्लस्टर्स कैसे फॉर्म करोगे आप? क्लस्टर्स कैसे फॉर्म करोगे? फॉर एग्जांपल, आपका रहेगा यहाँ पर सेल्स हाई है, ठीक है, सेल्स हाई है, वेरी प्लस सेल्स। यहाँ पर सेल्स लो है, ठीक है, यहाँ पर भी सम वैल्यूज यू हैव प्लस, ठीक है, सम वैल्यूज यू हैव प्लस। तो बेस्ड ऑन दैट, आपका जो मेट्रो सिटीज का डेटा यहाँ पर क्लस्टर्ड हो जाएगा आपका, ठीक है, इट विल गेट क्लस्टर्ड देयर। फिर आपका विलेजेस का कुछ यहाँ पर डेटा आ जाएगा, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग पावर समवॉट नॉट दैट गुड, ठीक है। एंड देन आपका कुछ मेट्रो सिटीज या टीयर टू टीयर थ्री सिटीज का डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। So you will be clustering the data, guys, ठीक है, you will always be clustering the data। So आपके पास ऐसे डॉटेड डॉटेड पॉइंट्स रहेंगे, डॉटेड डॉटेड पॉइंट्स मीनिंग आपका ये डेटा है, ठीक है, दिस इज योर डेटा। तो कुछ आउटलायर्स भी रहेंगे कुछ इस तरीके से। So this is how your clusters look like, ठीक है। तो आपके पास जो भी डेटा रहेगा, you will be segregating that data into different different clusters, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये हर तरफ होगा। लेट से यू हैव किसी कंपनी का डेटा, ओके, किसी कंपनी का डेटा मीनिंग सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, ओके। तो देयर विल बी सम एम्प्लॉइज, उनका सैलरी बहुत ही ज्यादा रहेगा, ओके। तो वो इस प्रोबेबली इस क्लस्टर में होंगे। कुछ एम्प्लॉइज जो एंट्री लेवल के, कुछ उनका डेटा यहाँ पर रहेगा, किसी का कुछ मीडियम लेवल का सैलरी रहेगा। so you are clustering those salaries। so why do we have to do this? Why do we have to do the clusters? For example, इस सेल्स डेटा के ऊपर आपको कोई एड रन करनी है, आपको कहीं मार्केटिंग करनी है, ओके, यू वांट टू डू द मार्केटिंग। सो फॉर दिस सेगमेंट, ठीक है, आपको कुछ मार्केटिंग करनी है। So for this segment आप अलग तरीके के ऐड लगाओगे। For this segment you will be running different type of ads, right? Different type of ads. So the ads which are somewhat more related, so you will be running some farmer related ads या जो भी है, right? जिसमें कोई person है, he is running through the villages or running through or walking through the farms and all like this. और you will be, यहाँ पर आप क्या दिखाओगे? You will show more luxury, right, like this। So based on the data set, you will be doing the marketing campaign, right, different campaign। So this is why you need to work on this data or cluster these data, okay, okay, all right। I think we are about time। So this is all about ये चीज पकड़ लो, ठीक है। AI, ML, DL and data science and machine learning algorithms हमने अलग से पढ़ लिए हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग algorithms हमने अलग से पढ़ लिए, which are supervised and unsupervised। सुपरवाइज में हमने देखा क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टर, ठीक है। एनी कंफ्यूजन यहाँ पर, कोई डाउट छोटा मोटा? लेट्स टॉक अबाउट इट गाइस। एनी डाउट? People on the YouTube says non-tech graduate can enter into AI. Yes, yes, Mr. Knox, non-technical will also get into this। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो, इवनिंग का बैच अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, 10-12 लेक्चर्स ही हुए हैं। यू कैन ऑल्सो गो गेट इनटू डेटा साइंस एंड एआई ऑल्सो, ठीक है। सुदीप सर, इज लॉजिस्टिक algorithm used in regression? इज लॉजिस्टिक algorithm, सो हमने यहाँ पर जो देखा था, लॉजिस्टिक इज द पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन,
ठीक है, लॉजिस्टिक इज द पार्ट। तो लॉजिस्टिक एक बार चेक, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी है गाइस, यस। लॉजिस्टिक एक क्लासिफिकेशन भी है, रिग्रेशन भी है। तो इट इज यूज्ड फॉर बाइनरी क्लासिक प्रिडिक्टिंग द, सो बाइनरी मीनिंग क्या हो गया, यस नो हो गया, लाइक यस नो ट्रू फॉल्स। तो दिस इज स्टैटिस्टिकल मेथड। चलो ठीक है, इसको जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तब हमें, मतलब जब डीप में पढ़ेंगे तब ज़्यादा पता आएगा। बट यस, इट इज ऑल्सो यूज फॉर, लाइक इट इज ए रिग्रेशन मॉडल एज वेल। ठीक है, रिग्रेशन मॉडल एज वेल। तो ये यूजुअली यस नो या ट्रू फॉल्स करता हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एडेड इनटू द क्लासिफिकेशन। कूल। एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक्स फॉर दिस। एनी मोर क्वेश्चंस, एनी डाउट्स जो हमने देखा हमें पता है? Hmm. Zen Ul says, wow, thank you. Okay. If you have any questions, so let me know. कल हम लीनियर रिग्रेशन शुरू कर देंगे गाइस, ठीक है? लीनियर रिग्रेशन या फिर, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन ही शुरू करते हैं। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट्स, या फिर आप ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, एंड आई विल अपडेट दीज फोटोज या फिर जो भी नोट्स है इन ऑन दिस गिटहब। गिटहब पे मशीन लर्निंग नाम से एक नया फोल्डर में तैयार कर देता हूँ, एंड आई विल अपडेट दिस नोट्स ऑन द गिटहब और ऑल्सो ऑन द ग्रुप। ठीक है, those who want to, so there are two batches in the morning, we have 8 a.m. to 9 a.m. in the evening जो नई बैच शुरू हुई है जहाँ पर अभी पाइथन सिखा रहे हैं, तो वेयर वो 9:30 to 10:30 p.m. है इवनिंग में। ठीक है, cool guys, if there are no questions type win in the comments, so I will get an idea that you've got this everything, आपको समझ में आ गया है नहीं आया है। ओके विन, कूल विन। और इसको प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, गो थ्रू द वीडियो डायरेक्टली। ठीक है, आपको अभी इसका कुछ, यू डोंट रियली हैव टू टाइप और रन ऑन द गिटहब, लाइक नोटबुक पे इसके ऊपर इधर कुछ ऐसा रन करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ट्राई टू प्रैक्टिस दिस, लाइक वीडियो एक दो बार देख लो, आपको लाइक मोस्ट ऑफ द चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, यू विल गेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ऑलराइट, so anyone, if I will still wait for half a minute. If you have still any questions, let me know. Anything which is related to data science, AI, career, anything. Okay. Otherwise, we can close the call and do practice this, guys. Okay. Practice करो इसको, जितना ज़्यादा practice कर सकते हो उतना ज़्यादा practice करो। Suas says win, good, win, win. Alright. मशीन लर्निंग में हम मोस्ट ऑफ दिस एल्गोरिदम कर लेंगे। कुछ और स्पेशल एल्गोरिदम अगर आपको लगता है कि यार ये भी आप पढ़ाओ तो भी दैट आल्सो आई विल टीच। ठीक है, टाइम सीरीज भी रहता है इसके अंदर, टाइम सीरीज के अंदर अरिमा रहेगा, है ना? टाइम सीरीज हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, आई एम नॉट श्योर, टाइम पे टाइम के ऊपर है। अगर हम टाइम सीरीज देखेंगे फिर उसके अंदर अरिमा इज वन ऑफ द फेमस। ठीक है, अरिमा शायद मैं पढ़ा दूंगा, yeah, if you have some more demand I will also explain it. Arima model, ये भी रिग्रेशन है I guess, ऑटो रिग्रेशन। so these are some advanced, ठीक है, ये एडवांस मॉडल है, इसके अंदर तीन और डिफरेंट मॉडल्स है, ऑटो रिग्रेशन, इंटीग्रेटेड, मूविंग एवरेज। और हम इसके अंदर ही सीखेंगे और भी चीजें जैसे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। ठीक है, अरे सबसे हम ईडीए एक सीखेंगे। ईडीए रहेगा आपका एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। उसके बाद हम इवैल्यूएशन मैट्रिक्स सीखेंगे, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। ठीक है, इवैल्यूएशन मीनिंग इवैल्यूएट कैसे करना है मॉडल्स को। ऑलराइट गाइस, काफी चीजें हैं जो आगे आएगी, बट आई विल कीप समथिंग सब सरप्राइज। तो लीनियर रिग्रेशन कर शुरू करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स। कूल, नो डाउट्स। मिलते हैं कल गाइस, सी यू टुमारो 8 a.m. फॉर मशीन लर्निंग, 9:30 p.m.
इन टुडे इवनिंग फॉर हम सीख रहे हैं लूप्स वाइल लूप सीखेंगे कल. ओके. ऑलराइट गाइस, सी यू टुमारो. बाय बाय. हैव अ गुड डे.